Okay, let's understand what simple interest is all about. Now, if you see, suppose there is one person who is in need of money. Okay, उसको हम कहेंगे borrower. That person is called borrower. और he goes to ask money from bank or from any person he knows has surplus. जिसके पास surplus होगा वही तो दे पाएगा. So definitely this borrower goes to either any money lender. The money lender जो पैसे दे रहा है वो उसको lender कहते हैं, money lender. So that could be the bank, that could be another person like this. So वो जाके कहता है please I want to borrow let's say ₹100. Okay, ₹100 for let's say 1 year. तो इसको हम ये अमाउंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट. यहाँ पर लिखा है ना प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज व्हाट द मनी लेंडर और द I mean which could be a bank or an individual they will give. It's upon them whether they decide to give or not. तो वो अगर दे देते हैं टू द बोरोवर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. जो बेस अमाउंट जिसको बोरोवर के पास जरूरत है उस अमाउंट को कहते हैं principal amount. Now this money lender also will see its own interest. Why should it give for an entire year ₹100? In return it would want to have something, right? So let's say they both mutually agree, the borrower and the money lender both agree that the end of 1 year this particular person, borrower, will give not only ₹100 back, means the principal amount back, but also some extra money back. Okay, so that extra money, let that be equal to that rate of that interest, should let it be equal to 10%. Okay, per annum. Annum is I think a Latin word. It means yearly, annually. Okay, इफ सपोज जो बोरोवर है वो एक साल के जगह पर 2 years के लिए वो मनी लेता है. सो 2 years के लिए तो 10% होगा फर्स्ट ईयर के लिए. नेक्स्ट ईयर के लिए 10% फिर से ज्यादा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ऑन व्हाट? ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. जो बेस अमाउंट है उसके ऊपर जो है वो कुछ इंटरेस्ट देता है. दैट इज कॉल्ड आई मीन द इंटरेस्ट. सो इसीलिए एनुअली वर्ड यूज होता है, क्योंकि हो सकता है एनुअल नीड नॉट बी 1 year, इट कुड बी 2 years ऑल्सो. सो दैट इज वाई rate percent is generally declared with per annum. So ये 10% है यहाँ पर. मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ what? ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. सो 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. कितना है प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हमारा? 100. सो 10/100 into 100, that will be ₹10. So he will give after the end of 1 year not only ₹100 but also some extra money which is called interest, that is ₹10 back to the money lender. Okay, now coming to simple interest, let's first have a look at the simple interest. What does it mean? हम तो interest की बात कर रहे हैं. When interest is calculated uniformly on the original principal amount throughout the loan period, it is called simple interest. Okay, मतलब एक जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है. मतलब जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का दैट विल गेट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, उसके ऊपर और इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. एवरी ईयर द इंटरेस्ट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में मैं ऐड करती जाती हूँ इंटरेस्ट को. सो इन प्रिंसिपल अमाउंट जैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट किस पे होता है? ऑन द बेस अमाउंट, ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है. सो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज डिफरेंट. बट सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल. ₹100 लिया था तो वो 110 नेक्स्ट ईयर मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं हो जाएगा. 100 विल रिमेन 100. हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लाते हैं बीच में, बिकॉज दैट विल बी कंफ्यूजिंग हियर. तो प्रिंसिपल अमाउंट जहां पर चेंज नहीं होता and interest remains uniform, okay, based on the original principal amount. Original क्या? principal amount एक ही होता है in case of simple interest throughout the entire time period for which the loan has been taken. That is called simple interest. Okay, what is principal? The money which is borrowed is called principal, right? In our case is ₹100.
rate is the interest on each borrowed rupees 100 for 1 year is known as rate percent per annum. मैंने कहा था ना annually. So for each borrowed is rupees 100. जरूरी नहीं कोई किसी से बोरो करेगा rupees 100, कोई किसी से 1000 रुपीज भी बोरो कर सकता है. इसमें कितने हंड्रेड्स है? 10 hundreds है. In this 1000 there are 10 hundreds. So the interest on each of the 100 is decided by what? The rate. The rate is that interest. मान लो 10% per annum है, right? तो ये जो 100 है, on each 100 out of these, the borrower is going to give rupees 10 on each 100, okay, to the money lender, because the interest that has been decided by both money lender and the borrower is 10% per annum. तो इस तरह से अगर देखें 1000 में 10 hundreds है, तो 10% per annum अगर रेट होगा, then what will be the money that he is going to give? He will give rupees 10 on each 100, right? To back to the money lender. So rupees 10 into 10, because there are 10 hundreds. So 10 hundreds के लिए 10 मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑन द इंटरेस्ट रुपीज 10. ईच 100 के लिए अगर रुपीज 10 दूं तो 10 हंड्रेड्स के लिए मैं 10 मतलब 10 हंड्रेड्स के लिए मैं 10 into 10 ही दूंगी. सो इट इज रुपीज 100. दैट इज द इंटरेस्ट, टोटली इंटरेस्ट, which is being decided by what? By the rate percent per annum. Time is the time period for which we either lend or borrow money. Okay, what has been decided initially, that after this you have to pay me the entire principal amount with the interest. That is the time period. Amount is principal plus simple interest. Okay, principal जो initially हमने बात की, borrower ने दिया है, money lender ने दिया है borrower को, and simple interest is what? That the borrower is going to return to the money lender along with the principal amount. दोनों ही चीज को मिला के जो अमाउंट बोरोअर लेंडर को देगा उसको कहते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट. ओके, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट. अब फॉर्मूला पे आते हैं. फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट यहां पर भी लिखा हुआ है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दैट इज द फर्स्ट इनिशियल अमाउंट दैट द बोरोअर हैज टेकन, मल्टीप्लाइड विथ रेट परसेंट पर एनम. रेट किस में डिक्लेयर होता है? रेट परसेंटेज में डिक्लेयर होता है. So rate percent अगर मैं कहूँ, if you remember, when I am representing a certain rate as rate percent, that means I am going to represent as a fraction. So 10% means that will be written as 10 by 100, right? So इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पर rate percent per annum highlight किया है, क्योंकि ये by 100 तभी सेंस बनाता है. Why is this by 100 coming all of a sudden? Because we are not using this 10% with this percentage symbol. We are using the fraction to calculate the actual simple interest based on the principal amount. So 10 by 100 into the time period that has been decided. So that will give us the simple interest. And when you add the simple interest to the principal, you will get the amount that the borrower will return to the money lender at the end of the given time period. All right. Okay, let's start with this interesting question. First, let's have a look at these formulas, which are very important. Formulae. First is for simple interest. We discussed principal into rate percentage, which is R by 100. That is why rate percent means rate. That percentage is defined in the method of fraction. तो फ्रैक्शन में अगर हम 10% को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 10 by 100. इसीलिए by 100 नीचे है, वो इस रेट परसेंट का ही 100 है, into the time period for which the principal has been borrowed, that is, or lent, जिस तरह से भी आप देखना चाहो, that is the simple interest. And rate is generally given in per annum, which means annually, and time period is also mentioned in years generally. अगर months में declare हुआ हो और rate percent annually दिया गया हो, तो हमें टाइम पीरियड को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इयर्स. मंथ्स में दिया गया हो 5 months 6 months, अगर टाइम पीरियड ऐसे दिया गया हो, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इयर्स. सो दैट सारे यूनिट ऑफ मेजर वो क्वेश्चंस हम करेंगे. एज वी डू वी विल अंडरस्टैंड हाउ.
और सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने सीखा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, right? Amount that the borrower is going to give back to the money lender is not only the principal amount but some simple interest also, that is the total amount. तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. संतोष deposited rupees 3,000 at the rate of 7% per annum for 3 years. Find the simple interest and amount. Now Santosh is depositing. It's not given where. Let's assume that he is depositing in bank. Now हमने एग्जाम्पल लिया था कि बैंक हमारा मनी लेंडर है. हमें जरूरत थी, किसी बरोवर को जरूरत थी, वो बैंक के पास जाके मांगता है पैसा और बैंक उसे एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम टाइम पीरियड, डिसाइडेड टाइम पीरियड, वो पैसे देता है, बिकॉज बैंक ऑलवेज जनरली हैज सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी. पर कभी कभी हम अपने बैंक अकाउंट में, अगर आपको पता हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट, जनरली बैंक्स एनकरेज टू कीप 1 lakh rupees in your savings bank account and annually they give a certain percentage of interest on that particular amount. बैंक इंटरनली हमारा जो डिपॉजिटेड पैसा है उसके पास, वो उसको इंटरनली काफी सारी चीजों में यूज करता है टू इंक्रीज द मनी विद देम, टू कीप इंक्रीजिंग द मनी विद देम. उससे हमारे पैसे में कोई फर्क नहीं आता. हमें लगता है मेरा 1 लाख जो मैंने डिपॉजिट किया था वो वहीं पड़ा है, पड़ा तो वही है, मेरे नाम पे ही है. बैंक इज नॉट गोइंग टू डू अनलेस इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक, देयर इज नो इशू. पर वो इंटरनली काफी सारी चीजें, शेयर मार्केट्स में, इधर उधर काफी सारी चीजों में बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू कीप दैट सरप्लस मनी, टू कीप इट इंक्रीजिंग. तो एट द रेट ऑफ अ सर्टेन पीरियड, जनरली हम फिक्स डिपॉजिट्स पे बैंक के बात करते हैं. तो हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक का मान लो मैंने देखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% पर एनम, मुझे वो एनकरेजिंग लगता है. मैंने 3 साल के लिए पैसे रख लिए, certain principal मैंने रख लिया. Let's say in this case संतोष deposited rupees 3,000 as a fixed deposit in the bank. तो अभी बैंक का फर्ज है कि वो rupees 3,000 सिर्फ नहीं रिटर्न करे, 7% पर एनम के रेट पे संतोष को कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दे. क्यों? क्योंकि बैंक इंटरनली इस पैसे को अपना रेवेन्यू बढ़ाने में यूज कर रहा है. So at the end of 3 years, Santosh will get more than rupees 3,000. So bank encourages also the opposite. सिर्फ बैंक मनी लेंडर हो जरूरी नहीं, बैंक बोरोवर भी इन certain cases होता है, like in case of fixed deposits, like in case of savings bank account of different employee. तो ये करते करते बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट करता है. तो इसलिए बैंक एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड जो डिसाइड किया गया है, इट गिव्स एक्स्ट्रा मनी विच इज द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. सो यहाँ पर संतोष ने, दैट इज व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर इज अनदर वे अराउंड ऑल्सो. बैंक इज नॉट जनरली, विल नॉट ऑलवेज बी द मनी लेंडर, इट कुड बी द बोरोवर एज वेल. So Santosh has deposited rupees 3,000 means उसका principal amount rupees 3,000 है, and rate of interest हमें दे दिया गया है 7% per annum. For what time period? Time period is 3 years. So now we can use simple interest formula. Simple interest is P into R into T by 100. So 3,000. अभी मैं 7% नहीं लिखूंगी, 7 by 100 लिखूंगी into 3 years. Annually है और ये 3 years है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. 0 0 कॉमन है, कैंसिल आउट करेंगे. सो इट इज 3 into 9, 9 into 7, 63. So और 0 एक है, so it is rupees 630. That is the simple interest. और total amount that the bank will pay at the end of 3 years to Santosh, it will be principal plus the simple interest. So that is 3,630, right? Principal amount 3,000 है और 630 अगर हम add up करें, the total amount that is paid to Santosh at the end of 3 years is 3,630. Okay, let's look at this question. Nikhil borrowed rupees 7,500 from his friend and after 1 year, look at the time period here, 1 year, returned rupees 8,250 to his friend. Calculate the simple interest and rate. So we know how much he borrowed. So that is the principal amount, rupees 7,500, and
Time period we know, time period is 1 year. I'm just listing down whatever is given to us. Okay, that's very important. क्या हमें दिया गया है, क्या हमें ढूंढना है. And amount which is returned back is rupees 8,250. Okay, that he gives back, Nikhil gives back to his friend, is rupees 8,250. Now we need to find simple interest. So we know, हमने पहले भी देखा था पहले स्लाइड में, इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में, अमाउंट, ये वाला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, आई कैन यूज दिस नाउ, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. मुझे अमाउंट पता है, मुझे प्रिंसिपल पता है, then I can easily find it out here. Okay, let me bring the cursor down or let me put it here only. ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसके बेसिस पे, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो विच इज 7,500 माइनस, सॉरी नॉट ऑपोजिट, amount 8,250 है, not 7,500. So 8,250 minus 7,500. So that will be 50 here coming down. 12 minus 5 is 7 and nothing remains here. So the simple interest that he received, that he gave to his friend was rupees 750. Now it is also not only asking the simple interest, एक part तो हमने calculate कर लिया. Now it is also asking rate of interest क्या decide किया गया था between him and his friend. वो भी easily निकल सकता है. How? We know simple interest is equal to principal into rate % into time. Okay, ये है simple interest का फॉर्मूला. तो क्या इससे मैं रेट नहीं निकाल सकती? रेट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अच्छा उल्टा करते हैं. 1 moment, लेट मी इरेज दिस. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी to keep the, I'll keep the rate percentage here in the numerator only. तो क्या होगा, ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला जाएगा 100. सो इट विल बिकम 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट. और पीटी कहाँ आएंगे, पीटी नीचे चले जाएंगे. सो इट विल बी बाय पीटी. तो रेट विल बी इक्वल टू 100 SI बाय पीटी. सो 100 इंटू 750 divided by principal is 7,500 into time period which is 1 year. So here हम जो कॉमन जीरोज हैं वो कट कर देंगे, 75 कॉमन है वो कट कर देंगे. सो बचा क्या, रेट परसेंट से बचा है यहाँ पर 10, राइट, 10 ही बचा है, 10 इंटू 1, नीचे सिर्फ 1 बचा है. सो 10% पर एनम. इस बेसिस पे निखिल ने अपने फ्रेंड से बोरो किया था पैसा. दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑल राइट, तो इस तरह से आप फॉर्मूला दो ही है. एक है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का PRT बाई 100. सो उसमें से आप रेट परसेंट भी इसी तरह ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो. चाहो तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो, तो भी आप इसे यूज कर सकते हो. और टाइम पीरियड भी यूज कर, अगर क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट गिवन टाइम पीरियड, तो भी ये फॉर्मूला यूज करके आप सिंपल इंटरेस्ट का डिराइव करो, फॉर्मूला डिराइव करो. कॉमन ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखो, बाकी फॉर्मूला रट्टा मत लगाओ. आप लोग अलजेब्रा काफी टाइम से पढ़ रहे हो फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स. सो यूज दोज algebraic methods and derive for rate of interest or time period the formula. Let's move to another example. Now this is a very interesting question. A certain sum of money doubles itself at simple interest in 8 years. In how many years will it be 3 times at the same rate? So let that certain amount of money, let the principal be rupees 100. Okay. So ये क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है. तो मतलब at the end of 8 years वो 200 rupees, 100 के जगह पर rupees 200 बन जाता है. At the end, if the principal is 100, आप x भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर 100 लेके कर रही हूँ. At the end of 80 periods, so time period हमें दे दिया गया है 8 years. Principal amount, not principal amount, but amount will be equal to rupees 200, right? Amount will be equal to rupees 200. इसका मतलब है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है
अगर प्रिंसिपल अमाउंट है ₹100, सिंपल इंटरेस्ट भी ₹100 है, राइट? तो उससे मैं रेट परसेंट निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ? सिंपल इंटरेस्ट मेरा पता दिया गया है, इट इज 100 बिकॉज एट द एंड ऑफ 8 years द अमाउंट दैट आई एम गेटिंग इज 200, राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा ₹100 हो गया. सो PRT बाई 100 ये फॉर्मूला. मैं इससे रेट परसेंट निकाल लूंगी. यहाँ पर मैं डाल दूंगी 100, राइट? अच्छा, पहले लिख लेती हूँ, नॉट टू कंफ्यूज एनीवन. रेट इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय PT. दैट इज द फॉर्मूला फॉर. अब मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ. जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 100. यहीं से मुझे पता चल गया बिकॉज टोटल अमाउंट जो है वो है ₹200 एट द एंड ऑफ 8 years. सो सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेटली 100 है, तो ही प्रिंसिपल अमाउंट में 100 और 100 ऐड होके अमाउंट 200 डबल हो गया है. डबल हुआ है मीन्स ट्वाइस हुआ है मीन्स 200 हो गया है. सो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट विच इज 100 बाय प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 100 ही लिया था. लेट द प्रिंसिपल अमाउंट भी 100 मैंने ले लिया था. यहाँ पर एक स्टेटमेंट 100. टाइम पीरियड बताया गया है 8 years, राइट? सो 100 और 100 यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं. 4 2 8, 4 25 100. तो क्या बचा? 25/2. दैट मीन्स इट इज 12.5% पर एनम. रेट है 12.5% पर एनम. नाउ इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 3 times एट द सेम रेट? कितना टाइम लगेगा टू फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट टू बिकम जो अमाउंट फाइनली मुझे मिलेगा दैट विल बी 3 times द प्रिंसिपल. मतलब जो अमाउंट है दैट विल बी 3 times द प्रिंसिपल. तो डेफिनेटली इट मीन्स मेरा प्रिंसिपल अगर 100 है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेटली 200 हुआ. दैट इज वाई एट द एंड आई एम गेटिंग ₹300 थ्राइस. मुझे कह रहा है 3 times मतलब ₹300 मिल रहा है. तो मुझे यहाँ पर अगेन सिंपल इंटरेस्ट बता दिया गया है 200. मुझे रेट ऑफ परसेंट मिल गया है 12.5. सेम रेट उसने कह दिया है तो 12.5 यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा. अब मुझे टाइम पीरियड ढूंढना है. तो टाइम पीरियड अगर मैं यहीं से क्या यूज करूं, यहीं अगर फॉर्मूला यूज करूं तो मेरा होगा टाइम पीरियड विल बी, यही से निकालती हूं 100. ये सब फॉर्मूला मैं याद बिल्कुल नहीं रखूंगी. आई विल जस्ट डिराइव. मेरा ओरिजिनल पेरेंट फॉर्मूला ये है. चाहे मुझे इसमें से रेट निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, one of these if I have to find out, I can use this formula. Others are not variable. One is I don't know, one is unknown. बाकी सब known है, then I can easily find out. So time is equal to 100 SI by PR. Okay? So यहाँ पर मैं ले लूंगी, यही फॉर्मूला यूज करूंगी. रेट तो सेम है ही. So time period for which the money has to be invested will be 100 into 200. सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ से पता चल रहा है 200 है, राइट? सो मैं यही सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर डाल दूंगी ये फॉर्मूला में, राइट? उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 मैंने ओरिजिनल लेट ले लिया था. लेट दिस विद दैट. यहाँ पर मेरा क्या है? रेट परसेंट है 25/2, राइट? 25/2. अब 100 और 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. बचेगा 200 इंटू 25, नॉट 25 सॉरी, इंटू 2/25, राइट? ये डिनोमिनेटर है मतलब डिवाइडेड है, तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगी तो रेसिप्रोकल होगा. इंटू 2/25 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 25 1 से 25 और ये होगा 25 8 are 200. तो टाइम पीरियड विल बी 16 years आफ्टर विच माई द अमाउंट दैट वी रिसीव और whoever receives 3 times of what was the principal amount at 12.5% per annum. I hope I'm clear with these questions. If you have any doubts, please do let me know in the comment section.